So today I have assigned a revision class. What do you want me to revise? Good afternoon, sir. Good afternoon. What do you want me to revise? Please let me know. No answer. That means you know everything very well, the whole class, right? You don't need revision. Sir, you can explain the important term which is important for us, sir, in today's class. Everything is important. I mean, it's an important concept which is ऐसा सर जो आप बताए हैं वो सर समझ में आ गया, जैसे बिजनेस सेक्टर वगैरह ये सब जो आपका टॉपिक है सर वो क्लियर है सर. इस बात का आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है. बिकॉज अर्लियर ऑन आप लोगों को पहले 2 मार्क का भी था, 5 मार्क का भी था. नहीं, आप लोग में ऐसा नहीं था. हाँ, तो वो तो पेपर वहीं पे हुआ था, कॉलेज में हुआ था. Yes. Yes, sir. वो सब. बट नाउ बिकॉज वी आर डूइंग इट तो कंप्लीट एमसीक्यू जाएगा और that is the only form of question, 30 questions. And I think it's same for all the subjects. सब सब्जेक्ट का तो वही फॉर्मेट है. यस सर यही है. I'm just scrolling and looking at what is best suited to your Aichi is in. Yes sir. She is the student of that class. Yeah. So Ayachi, how are you? Can you hear me? Aichi? Yes, sir. Good afternoon, sir. Fine. Good afternoon. So who's this Abhinay Kumar? He doesn't have any roll number. He doesn't have anything. सर रोल नंबर उसका 19 है सर. आईडी हमको पता नहीं है सर, बट रोल नंबर 19 है. अभिनय कुमार है इसी क्लास का सर. Abhinay? Abhinay? Abhinay Kumar, can you hear me? Yes, sir. Do you mind putting in your roll number and your ID, because we don't know if you're a student of Simage or you're not, because you only have your Yes, name. sir. Yes, sir. Wait a minute. Sir, rejoin कर देता हूँ. ठीक है. I'll allow you in. आप एक बार बाहर निकल के तभी हो पाएगा. Sachin Kumar. Okay.
Ridhima also. So let me just revise the memo on the government correspondence, with this. Shreyansh is there, roll number 53, nahi? Shreyansh. यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के हेडिंग में दिया हुआ है, but this actually is communicating or correspondence with in a business setup as well. Okay, because you have correspondence catering to your fellow members, like an agenda. It is catering to the fellow members of a business organization, the managing directors, the board, company board, and all the various hierarchy में जो होते हैं लोग ऐसे. तो ये गवर्नमेंट को ही नहीं हुआ. When you're communicating with the people that are in your organization. I think I haven't shared the screen, but now let me begin. So, Ridhima. Ridhima, can you hear me? Ridhima. Yeah, Sachin. Sachin? Yes, sir. Okay. So let's just see. So this is just not government, what you call correspondence, but this is correspondence of all types. So all types, that means आप organization को भी लिखते हैं. So, Sachin, can you hear me? Yes, sir. Okay. Can you read this, please? जो government correspondence objectives. Why do we objective होता नहीं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अगर आप लोगों को ये मालूम होगा कि yes, this is the reason why we study this. So I think you will be able to put in your heart and soul into it. So Sachin, please read the objectives. सर सॉरी सर, एक्चुअली हम रास्ते में सर, इसलिए हम प्रॉपर देख ही नहीं पा रहे मैम. सर धूप में है थोड़ा. Oh, सॉरी सर, no हमको problem. पता नहीं किस टाइम में आपका ये क्लास आ जाएगा. सॉरी सर. अच्छा, कोई बात नहीं. So someone else who can. Mahi, can you? Yes, sir. Okay. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है. इस अध्याय का उद्देश्य छात्रों को ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस की विभिन्न
विधाएं जैसे मेमो, एजेंडा, मिनट्स तथा प्रपोजल लिखने में निपुणता प्रदान करता है। इस अध्याय के माध्यम से छात्र मेमो, जिसका की उपयोग किसी संस्थान के भीतर किसी व्यक्ति विशेष समूह विशेषण को सूचना प्रेरित करने के लिए किया जाता है से परिचित होंगे। वहीं इस अध्याय में छात्र एजेंडा बनाने सीखेंगे। इसके साथ ही छात्र मिनट्स, जिसके माध्यम से किसी भी मीटिंग की क्रमवार समरी को बनाना सीखेंगे। इस अध्याय में छात्र प्रपोजल बनाने की विधि से भी अवगत होंगे। ग्रेट। तो इसमें सब आप लोगों ने देखा कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मेमो, एजेंडा, मिनट्स, है ना, तो ये सब क्यों रिक्वायर्ड है। तो एक चीज जो सबसे फर्क लाता है मेमो में, जो बाकियों में अलग है, मेमो इज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट, उसके अंदर अपने एम्प्लॉइज या बाकी लोगों को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट इज डन थ्रू अ मेमो। बाहरी लोगों के लिए या अगर कोई पब्लिक या आप समाज में आप कोई संदेश फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो यूजुअली दैट इज हैंडल्ड बाय अ प्रेस नोट एंड दैट इज इश्यूड बाय द पीआरओ। ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी होती हैं, दे हैव पीपल फ्रॉम पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। संस्था के बाहर का कम्युनिकेशन वो लोग हैंडल करते हैं, but within the organization it's handled through a memo. It's also called memorandum, which means to mention or call to mind or recount or relate. So these are the qualities that are mentioned of a memo. आपको याद दिलाने के लिए, call to mind, recount, relate. So these are all the concepts. So it must be remembered that it is therefore a note, document or other communication that helps in the memory of recording events or in observation on a topic, such as may be used as a business office. So iske liye ye use hota hai. Now memos, you must remember that, as I mentioned, within the organization, routine details, complete proposal reports, memos are often only a few short paragraphs. जबकि कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन का जो आप एड्रेस करते हैं, यू डू सो बाय राइटिंग वेरी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। तो जब आप कंसाइज एंड टू द पॉइंट लिखेंगे, देन ऑब्वियसली इट विल बी ओनली अ फ्यू पैराग्राफ्स। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो एक्सप्रेशन पावर जिनका बहुत अच्छा होता है, वो बहुत कम शब्दों में सेम चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो शायद जिसका बहुत अच्छा नहीं होगा, तो उसको बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। बट देन दैट डिपेंड्स ऑन द कमांड ओवर द लैंग्वेज, वो आपकी कैसी है। यस सर, इसको सर इंटरनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कमांड ऑफ द लैंग्वेज। हाँ, ये कंप्लीटली मेमो बल्कि सिर्फ इंटरनल ही होता है। एक्सटर्नल की मैंने बोला प्रेस विज्ञप्ति या the PRO, he is the person authorized to issue that. Yes, sir. उसमें और भी होता है कि अगर आज की डेट में मीडिया वगैरह कुछ भी अगर होता है, तो they will come and talk to any employee के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा हुआ है, मैंने सुना कि इस तरह। सारे एम्प्लॉयज को एक डायरेक्टिव दिया जाता है, you will not speak to the media. आप यही बोलेंगे कि आप अंदर जाइए और जो हमारे एक concerned person है, his position is that of the PRO, you put your query to him and he will answer. बहुत से इधर उधर से लोग लेकर के वो लोग प्रेस वाले लोग कुछ ऐसा आपसे बुलवा लेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। So the person जो tactfully handle कर सकता है इस सिचुएशन को is the public relation officer for external. Internal, it is a short this thing and to the point. Now we all know that it is for the internal within the office. So what does it do? There are some typical uses of memos. It first of all, to inform others about new or changed policy, procedures, organizational details. कोई भी change हुआ policy या procedure या उसमें, तो वो आपको एक internal memo के through सारे लोग को बताएगा. To announce meetings, events,
चेंजेस, अमेंडमेंट्स भी अगर कुछ हुआ है तो भी आप उसको उसी के जरिए आप अनाउंस होगा. Earlier on, let's say the time was 1 o'clock, but now it has been shifted for some reason. एक मीटिंग था पहले जो 1 बजे होने वाला था, अब उसका टाइमिंग पोस्टपोन करके 3 बजे कर दिया गया. एक इंटरनल मेमो जो है जल्दी से सर्कुलेट किया जाएगा सारे एम्प्लॉइज को. The time has shifted from 1 to 3. Then to announce meetings, events and changes, it's also to present decisions, directives and proposals, briefings. यानी कोई directive है, a new protocol has to be followed because of a new COVID protocol has to be followed by the employees. It could be through a memo that this needs to be followed. We'll see the example. और इसको लिखने में and it's mainly used to transmit documents. Anku Kumari, no roll number, no nothing. Is she a student of? Yes, sir. Guys, she is. Yes, sir. Yes, sir, इसी बैच किया सर. And Ritik Kumar. Yes, sir. रोल 51 ये भी इसी बैच का है. तो अंकु को क्यों उसको पता नहीं है कि हम लोग को डालना पड़ता है अपना रोल नंबर और आईडी? अंकु, अंकु, Anku, can you hear me? No, she can't. She doesn't want to hear me. Anku, has she left? Good afternoon, sir. Good afternoon. Oh, who's this magical voice? कौन है भाई? Ritik? Yes, sir. Wonderful. Okay, so heading may is important in a memo, and to who, to and from is very important, and the date. Remember, time memo में नहीं दिया जाता है. Date is what is required, and subject. Subject, what is it all about, right? That you need to mention. So हम लोग और उसमें भी देखेंगे memo styles. सर Basically, मेमो में सैल्यूटेशन नहीं दिया जाता है ना, डियर रिस्पेक्ट? नहीं. Internal employees, it's supposed to be short and concise, so you don't need to, you just mention the name. ठीक है, हम लोग आगे और इसमें देखेंगे. ये देखो, concise, ये memo style नहीं हुआ. Basically, these are the points that you need to keep in mind while writing a memo. It should be concise and to the point. जैसे हम लोग business letter या सब में देखे हैं, किसी में भी you need to be to the point, right? And then you have to be direct. जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से आप किसी से बात कर रहे हो, not indirectly via media. So when you write a memo, please write it in that format that you're writing, that you're talking directly to the person. And then of course it should be clean, revised, copy edited and proofread. I asked this question about proofreading to BCA and none of them were able to tell me. So can someone tell me here, what is the meaning of proofread? Nobody? Proofread, sir. Yes, proofreading. ये past tense में जैसे proofread बता रहा है, लेकिन proofreading होता है. Means to check your mistakes which you have done. Very good. Absolutely. That is proofreading. Proofreading मतलब कि आपको जब छप गया है जो मेमो, लेकिन भेजने के पहले आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. Yes. So look for any spelling mistakes, grammatical errors, punctuation marks. ये सब हर
हाँ बिल्कुल, हर न्यूज़पेपर एडिटर्स जो होते हैं उनका रोल यही होता है। मैगजीन में जो एडिटर्स होते हैं, प्रूफ रीडर्स अपॉइंट होते हैं, their main job, they have to have a very good command over the language, yes, but other than that उनको छोटे से छोटे चीजों को पूरा देखना है कि सही तरीके से छपाए, और तब वो प्रेस में जाता है। After they have finalized it, then it goes for printing. So proofreading is one of the steps besides reread. Reread मतलब फिर से पढ़िए, revise it, copy edit it and proofread it. So these are the other things. So ये memo styles नहीं है, but these are the ways, techniques that you need to follow. So ये लोग आते जा रहे हैं। I think Pratyay, your mic is on, so you need to mute it. हल्की हल्की हवा के झोंके आ रहे हैं, वो भी आवाज सुनाई देता है। ठीक है, तो ये था। So अब ये देखिए, एक sample memorandum, how it is written, to, and अब ये internal है, तो you don't need a letterhead or something like that. Company का letterhead या ऐसा pad, उसकी आवश्यकता नहीं है। That is only done when you're writing to external agencies, external parties, external members. So to all staff, from Anand Murthy, General Manager. Date, no time, as I mentioned. Subject, emergency contact numbers. Right. Yes, subject में nice and short. बहुत लंबा नहीं है subject, लंबा होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सीधे देखिए, अगर मैं सबसे बोलूं कि भाई you need to give your phone number, तो दुनिया पर कल बखेड़ा शुरू हो जाएगा। Why you want the phone number? Why you want this? Why you want that? So people will start saying, अगर मैं reason दूं पहले, this is the purpose why I need your phone number, then people will go into the reason. They'll find, oh yes, there's a logical reason. बहुत सही है ये. So they will give it without protesting and without, any making a noise about it. Why? Because you have. So this is the art of communication. You must mention the reason, and then people will cooperate. So on this reason has been clearly there. On several occasions recently, there have been many emergencies when it was necessary to contact employee families. Sometimes it has been very difficult to obtain contact details quickly. One paragraph, problem is explained. Next paragraph, what needs to be done. Okay. So we feel it is important to compile an up-to-date list of contact names and telephone numbers. Please contact Pooja Verma, personal administrator, to be contacted in emergency. The information will be kept confidential. यानी जो phone numbers होंगे वो confidential होंगे. It will not be sold to Domino's or some other organization जो आपकी bombard करते रहे SMS से, text से, कि हाँ ये discount है. इसमें clearly mentioned, it will be kept secret. Many thanks. Know yours sincerely. See the change in the language. Many thanks. Thank you. And so on. And then it is closed. The reason sentence. Yet there's one more. This thing. A memorandum को memorandum जरूर heading डालना होता है. That is only because internal organization में जा रहा है. So anyone who gets it knows that it's a memo or a memorandum. दोनों में से आप कोई भी use कर सकते हैं. So to, from, अगर CC डालने की आवश्यकता आपको लगता है कि हाँ किसी और को भी ये लेटर जा रहा है. अब मान लीजिए डिसिप्लिनरी एक्शन किसी एम्प्लॉय पे लिया जा रहा है, सो द इमीडिएट सुपरवाइजर वो अपने फैक्ट्री वर्कर के ऊपर कि भाई आप रोज पिछले 5 दिनों से देख रहा हूँ यू आर कमिंग लेट, सो मेमो विल बी इश्यूड, एन इंटरनल मेमो विल बी इश्यूड, एंड दैट इंटरनल मेमो, लेकिन हो सकता है कि वो एक सीसी, एक कॉपी मार्क करना चाहे एचआर को,
ताकि एचआर के उसके फाइल में लग जाए कि भाई इनको मैंने एक बार चेतावनी दिया था, अगर बार बार वो करेंगे तो फिर सम स्टर्न एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। तो एक कॉपी उसने मार्क कर दिया मैनेजर ने टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे GTS स्टाफ टू फ्रॉम सारा मेंशन है, और ये प्लूरल में है GTS स्टाफ, यानी एक से ज्यादा लोग, नॉट टू एन इंडिविजुअल। एंड देन देयर इज कार्बन कॉपी, किसको और जाना जरूरी है, और डेट। Subject is mentioned clearly at the top, and then the lines. Someone's mute is on. Who's? एक तो है कोई बंदा, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मतलब फैन का है या कूलर का है, वो भी बड़ा इरिटेट करता है। When you have to take 8 classes, कहीं ना कहीं इवन हवा का एक झोंका भी जो है ना, वो भी परेशान करता है, especially if you're the teacher. Anyway, so this is the subject, and then it is mention all the reasons. ये खाली वो देखने का है। They've written एक 2 लाइन या 1.5 लाइन का एक पैराग्राफ। You can do that if you're changing the topic. हर बार आप कोई नया टॉपिक लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। You can have इसमें short और concise लिखा गया है, to the point. My sincere congratulations to all of you. So I don't know, ये word my sincere congratulations use होता है कि नहीं होता है? Congratulations to all of you is more acceptable. ये congratulate कर रहे हैं किसी को, इसलिए इन्होंने इसके बारे में लिखा। तो फॉर्मेट के बारे में कोई डाउट तो है नहीं, हालांकि इस एग्जाम में फॉर्मेट तो कैसे आएगा, ये 2 नंबर का मल्टी MCQ है। ऑब्जेक्टिव। यस सर। सर भाईवा में क्या Objective भी क्वेश्चन होता पूछे है। आप? हाँ, वो सब यही सब पूछेंगे। फॉर्मेट उसमें यस सर। 20 मार्क्स का है। यस जस्ट फॉर्मेट कैसे पूछ सकते हैं? फॉर्मेट आपको लिख करके, ड्रॉ करके, या ये करके बताना पड़ेगा। कैन यू वर्बली तुम बता सकते हो कि फॉर्मेट क्या होगा? वो तो मतलब बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन होगा। हाँ, कि पहले बताओ क्या है, फिर दूसरा बताओ क्या है, तो दूसरा सर फॉर्म फ्रॉम है, अच्छा तीसरा क्या है, तो अगर CC होगा तो वो रहे। It cannot be, that question is not viable or not to be asked in this thing. Yeah, a question can come like, give me some of the constituents of memorandum. To, from, date, subject, ये constituents, ऐसे questions आ सकते हैं। लेकिन मैं ऑर्डर में बोलूं या ऐसा कि क्या परफॉर्मा है उसी ऑर्डर में बताओ, तो बहुत सिली हो जाएगा ना। I mean, how can you expect someone to know कि दम वो chronology, हाँ chronological order में लिखना हो तो मैं expect कर सकता हूँ कि लिख करके बताइए, ठीक है। But I can't expect you to verbally say कि पहले ये होता है फिर वो होता है। This is a college stuff, not जो ratify करने वाला। Concept important, not that you mug it up and you vomit it out. I've always been against this kind of pedagogy where people रट लिया उसको और फिर just spill it out. तो ये आपका ये। Any questions on memo? यस सर। Yeah. सर मेमो एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा जाता है, तो ये सारे इंडिविजुअल के लिए होता है, मतलब सारे एम्प्लॉयज को एक मेमो सर्कुलेट किया जाता है। Yes. अगर कोई possible. इंफॉर्मेशन देना है या इंफॉर्मेशन लेना है, तो क्या ये इंडिविजुअल के लिए भी होता है? देखो, जैसे अब अभी हम आप लोग एग्जांपल को, दी। हाँ, तो इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। अगर एक कोई बंदा अगर कोई लेट आ रहा है पिछले 4 दिनों से, ठीक है, तो सर सिर्फ वही ना लेट आ रहा है और तो कोई नहीं आ रहा है, उससे हम रीजन पूछेंगे। मे बी उसका कोई वायबल या कोई सही रीजन हो। मे बी देयर इज अ इलनेस इन हिज फैमिली एंड देयरफॉर ही कांट कम ऑन टाइम। अगर ऐसा कोई वो रीजन देता है तो एट टाइम्स 4 या 5 दिनों के लिए एम्पैथी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करती हैं। ये नहीं कि नहीं आई डोंट केयर, आप 4 दिन से 15 मिनट लेट आ रहे हैं तो आपका मैं पैसा काटूंगा। आज की डेट में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बिहेव करती हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ। जैसे सर, तो उस टाइम पे भी मेमो ही दिया जाता है या कुछ हाँ, नोटिस?
दिया मेमो गया है। मेमो 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 नोटिस, देखो मेमो और नोटिस में बहुत फर्क नहीं। नोटिस होता है कि एक ही नोटिस छापे और उसको एक जगह कहीं नोटिस बोर्ड पे चिपका दिए, यस ठीक है, दैट्स अ नोटिस। अ मेमो आइडियली गोज टू एवरी पर्सन एंड दे हैव टू एक्नॉलेज इट मोस्टली बाय साइनिंग इट। एक अलग लिस्ट रहेगा कि हाँ आपने पढ़ लिया उसको, उसको पढ़ लेने को वो वैसे मेमो है। और हालांकि देखिए आज की डेट में, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मेमोज आर आल्सो आउटडेटेड, इट्स कंप्लीटली आउटडेटेड। आज की डेट में ईमेल, सो आई हैव वर्क फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिकन एक्सप्रेस, HCL, वहां पे हम लोग सीधे जाकर के अपने मेल में लॉग इन करते थे अपने सिस्टम पे, और पूरे दुनिया भर का जो भी नया नया ये होगा जो आपके इंफॉर्मेशन में होना चाहिए वो सारा वहां पे, तो यू कैन रीड इट। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको जानना है, आप जान लीजिए। कई ऐसे भी होते हैं कि आपको रिप्लाई करना होगा, तो यू नीड टू रिप्लाई टू देम इमीडिएटली। तो एज सच आज की डेट में ये भी कंसेप्ट पुराना हो गया इन, बिकॉज अब मान लीजिए कि आज एक फ्लोर पे 2-2 हजार लोग अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं ऑन द वर्क स्टेशंस। अब वो एक मेमो लेकर के 2000 एम्प्लॉय से सब लोग के पास ले जाएगा नहीं। वी हैव नाउ एडवांस्ड, वी आर बिकम मोर टेक Digital. savvy, बिल्कुल। so you just flash it at this thing, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, सबको ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, उसको तो भेजने में कोई नोटिस ड्राफ्ट करेगा, एंड टू ऑल एम्प्लॉइज, और अलग अलग ही होता है, टू द सुपरवाइजर्स, तो सिर्फ सुपरवाइजर्स को जाएगा, टू द मैनेजर्स को जाएगा। तो वो वैसे कर सकते हैं, जिसके लिए जैब बना हुआ है वो ड्रॉप डाउन में वही सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को जाएगा, जितने मैनेजर्स। दिस इज अ वेरी सर नाइस वे। सीसी का यूज क्या है सर, एक बार फिर बता देते हैं। सीसी का जैसे मान लो कि अब कोई पर्सन, मेल में भी वही चीज होता है, मेल में आप जो है लेट आ रहे हैं, मैंने आपका रिकॉर्ड देखा, एंड आई एम योर रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है, तो मेरे को ही एक्शन लेना होगा आपके अगेंस्ट है, मेरे को आपसे बताना होगा। ये मत उम्मीद कीजिए कि जनरल मैनेजर आपको बोलेगा, जनरल मैनेजर हैज अ लॉट ऑफ अदर पीपल टू हैंडल। सो सिंस यू आर रिपोर्टिंग टू मी, आई विल गो टू यू एंड आई विल टेल यू, not go to you, I'll give you a written this thing, maybe बहुत friendly हम लोग हैं तो I will say नहीं, ये ऐसा गड़बड़ कर रहा हूँ, हो सकता है तुमको मैं एक verbal बोल दूँ। अगर मैं देख रहा हूँ कि verbal बोला तुमको और तुम तब भी नहीं सुधरे, then I will issue a memo. Now memo is, it goes in your record, it goes in your file. आपका जब increment होगा, जो appraisal होगा 6 monthly या annually, तो वहां पे वो चीज डिस्कस होगी। तो what you have been see a memo was issued, आपके फाइल में वो मेमो होगा, तो मे बी सम पॉइंट्स आपके डिडक्ट होंगे अप्रेजल में, हो सकता है उन सम से आप अगर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन के कैटेगरी में आ रहे थे परफॉर्मेंस वाइज, तो अब आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे, यानी मीट एक्सपेक्टेशन में आ जाओगे, तो आपका तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, it meets expectation, और किसी का exceeds expectation, यानी वो ज्यादा है, उसका ज्यादा राइज बने। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, एक NI भी होता है, नॉट एलिजिबल, वो सबसे नीचे होता है। तो अब मान लो कि मैंने तुमको ये किया, अब मैंने एक मेमो लिखा, सो द मेमो इफ आई राइट, देन आई हैव टू राउट इट टू द HR मैनेजर आल्सो, क्योंकि HR को भी पता होना चाहिए, या आपके HR फाइल में ही वो कागज लगेगा, तो उनको भी हमको लूप में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ आपको इश्यू किया, कई बार प्रैक्टिस होता है, you have to issue to the HR department also. So I will mark a CC, carbon copy, to the HR department. So they also know that हाँ भाई, you have been coming late and I have issued a warning. अगर आप वो लोग बाद में देखेंगे किसी ने ऑब्जर्व किया कि आप 10 दिन से लेट आए हो और मुझे पता ही नहीं है, I will be questioned. What kind of a manager are you?
one of your subordinates or one of your colleagues, आज की डेट में subordinate भी नहीं बोलते किसी को, नीचे वाले को भी नहीं बोलते. There's a new culture that is coming in corporate the world. You say your colleague, चाहे आप, हाँ, सुपरवाइजरी, हाँ, supervisor क्या पूरा लेवल क्वेश्चन पूछो, पूरा क्वेश्चन पूछो ना, हम समझ नहीं पाए तुम्हारा क्वेश्चन. नहीं सर, आप बोले सबऑर्डिनेट नहीं बोल सकते हैं तो सुपरवाइजरी बोल सकते हैं ना. नहीं, सबऑर्डिनेट समझे, आपके अंडर में जो काम करता है तो वो सबऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, लेकिन ये पुराने जमाने का लैंग्वेज है, ठीक है. आज की डेट में आप कोई भी आपके इसमें कहता है ही इज अ कॉलीग ऑफ माइन, विल नॉट से कि वो मेरे नीचे काम करता है, वो जमाना लग गया. आज की डेट में बराबरी का मौका है, सब ठीक है आपके नीचे है, वो आपको पता है, आप अपने पास रखिए वो जानकारी. But when you address him to a third person, you say, yeah, he is my colleague. मेरा सहकर्मी, साथ में हम लोग काम करते हैं. उसमें पोजीशन का आप ऊपर या नीचे किसी को नहीं दिखाएंगे. तो सिमिलरली, तो जब आप मेल आपने राउट किया तो एक एचआर डिपार्टमेंट को भी इसलिए सीसी करते हैं, उनके भी नॉलेज में रहे कि ये लेट आ रहे थे और मैंने इनको एक क्वेश्चन किया है कि प्लीज टेल मी द रीजन. इफ ही गिव्स अ लॉजिकल रीजन, इट्स वेरी गुड. अब आप भी जब मेरे को जवाब दोगे तो वाया एचआर ही दोगे, एक कॉपी आप भी एचआर को भेजोगे ताकि उनको भी पता चल पाए कि जवाब क्या है. It is all about informing the other department of what is happening. तो एचआर को कुछ पता ही नहीं है और आप खाली एम्प्लॉय को और आप में चल रहा है. एचआर शुड आल्सो नो जो भी एम्प्लॉय का मसला होता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होता है, the human resource department handles that. ठीक है, ये कौन है भाई? बताएं. Agenda, the next topic. Now, agenda is nothing more but, keeping or informing everybody that there is a meeting which is going to take place on so and so date. सब कुछ predetermined होता है, date, time, venue, यहाँ पे location था, but पिछले बार भी मुझे याद है कि मैंने एडवाइस किया था, don't use the term location, use the term venue. Yes. जब हाँ, तो जब आप ये सारे चीजें पहले से ये होती है एजेंडा में. अब मेनली ये रीजन है एजेंडा का कि लास्ट मोमेंट कोई नया टॉपिक या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक ना छेड़े सब लोगों के बीच में. वही मुद्दे डिस्कस होते हैं जो एजेंडा में हैं, जो पहले से लोगों ने नोटिस दिया. मुझे अगर पूछना है कि व्हाई वर आवर प्रॉफिट्स लो, आई एम अ शेयर होल्डर, जो पूछने का अधिकार है एमडी से या जो भी. तो मैं जब एजेंडा में बन रहा होगा उसी टाइम मैं क्वेश्चन फाइल करूंगा. आई वांट टू स्पीक ऑन लो प्रॉफिट्स, सो माय नेम विल बी लिस्टेड as Anand Singh, who wants to speak on losses for the year for the industry. तब मुझे कोई नहीं रोक सकता बोलने से, लेकिन पहले से आपको नोटिस देना होगा. हाँ, जो अब आंसर जिसको करना है उनको भी पता होगा कि वो दिस गाय आनंद सिंह इज गोइंग टू क्वेश्चन अस ऑन द लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो नुकसान हुआ है. उनको पता, तो वो भी अपना जवाब फाइल फिगर्स सब देखे रहेंगे ना. कि मैं वहां पे आके कहूँ कि भाई प्लीज एक्सप्लेन व्हाई द लॉस, आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम लूजिंग ट्रस्ट इन दिस कंपनी, मेरा पैसा डूब गया, आप बताइए. ऐसे में कोई जवाब नहीं दे सकता, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, राइट? सो वो जो मीटिंग एक सुचारू रूप से चल सके इन अ प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, फॉर दैट एवरीबॉडी हैज टू मेंशन इन द एजेंडा व्हाट ऑल टॉपिक्स दे वांट टू डिस्कस. और एजेंडा बनने से पहले वो जब नोटिस आ जाता है लोगों को, मतलब कंपनी को, तो उसको एजेंडा में शामिल कर लिया जाता है. So that a good coordinated healthy discussion can take place. हमारे पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि सब लोग झांव कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. It's a shame as in how our elected representatives, how they conduct business in the house. So
यहाँ पे agenda, it is the ordered sequence of items. Sequencing करना जरूरी. Most priority जो होता है, सबसे जो ज्यादा priority वाले हैं, the topmost priority, they are number 1, number 2, number 3. So it descends in the order of priority. जो ज्यादा कम important मुद्दा है, उसको नीचे लाते जाइए, उसको नीचे लाते जाइए. So ये sequenced order की बात हो रही है. That is what you mean by sequence order. Order मतलब क्रम 1 2 3 है ना, and sequence basically means the same thing. Yes. So कौन सा पहले डिस्कस होगा, कौन सा बाद में डिस्कस होगा, is known as the agenda. तो objectives, उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, to familiarize the participants with the topic to be discussed and to be raised. क्या क्या टॉपिक, क्या क्या मुद्दे उठेंगे वो पहले से पता हो. जो जवाब देने वाले हैं उनको भी पता हो, उनके लिए भी सरप्राइज ना हो. Indicate what prior knowledge would be expected from the participants. पहले से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले से आप पूछिएगा क्वेश्चन, उत्तर वाले को पता चल जाएगा कि अच्छा ये पूछने वाले हैं. So he knows what all graphs, what all this thing to present. People are still trickling in. Rashid, Shreyansh, log out हो जाएगा. So this is the agenda. So you have to indicate prior knowledge. पहले से जानकारी होनी चाहिए. And then उसमें एक और थर्ड चीज होता है. सर राशि डिस्कनेक्ट हो गया. सर राशि का डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए सर वोटिंग में चली गई है. ओटी में तो अभी मैंने अलाउ किया उसको. हाँ अभी मैंने अलाउ किया उसको. अभी भी वेटिंग में है क्या वो? सर हो गया, ज्वाइन हो गया सर. ज्वाइन हो गए. So and then एक indicate the outcome, यानी इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या होगा वो भी थोड़ा बहुत आप अंदाज लगा के उसमें एजेंडा में लिख सकते हैं. Whatever discussion is to take place, what are the expected results? Expected results ही क्या, exact में क्या होगा ये तो आप नहीं जानते. तो expected results क्या होगा वो भी mention. So the other name of agenda, एक और नाम भी है order of the day, किस क्रम में लिया जाएगा. ठीक है. So this is the sample for agenda, as you can see. Sample agenda, इसमें business का नाम जैसे वो होना चाहिए. अब मीटिंग में बाहर के भी लोग आएंगे, बहुत से शेयर होल्डर्स आएंगे या different people can be. So it should actually be written on a letter pad ideally. अगर आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो एंड सो कंपनी एजेंडा, तो आप उस क्वेश्चन जो नाम दिया हुआ वही दे लेंगे. नहीं दिया हुआ है कुछ तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे. यू मस्ट राइट सम द नेम ऑफ द कंपनी, ABC लिमिटेड समथिंग, वो होना चाहिए, बिकॉज दैट सिग्निफाइज द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी व्हिच इज होल्डिंग द मीटिंग. उसके एजेंडा जो है उसके इस पे जाएगा तो एक लगेगा कि हाँ एक अथॉरिटी है, लेटर पैड पे है. नहीं तो कोई नकली कुछ भी प्लेन पेपर पे मार सकता है. This should be, and it should have the name of the company in ink. So date and time. अब देखो time जो है, it was not important in the memo, but time here is important. Usually time, what time it's going to be held. So that is mentioned. Attendees के names होने चाहिए. अब ये भी जो expected हैं, जो expected हैं उनका, क्योंकि agenda ध्यान रखना कि पहले से आप भेज रहे हो किसी को, ठीक है. तो उसमें prospective attendees, जिन लोगों ने confirm किया है होने का, उनका नाम आप डाल सकते हो. मीटिंग के दौरान जब होगा तो उन लोगों का तो मिनट्स में लिखाएगा कि कौन कौन से लोग आए हैं और कौन कौन से एब्सेंट. These are the people who have agreed to. Then the objective. Discuss the upraising fundraising. क्या objective है? उद्देश्य क्या? Why is that meeting being held? So you write that. And then
Yes, and then you write her breakup देना होता है 7:30 to 7:45. Welcome speech by so and so. Ellen Falbo, name of the, maybe he is the chairman, so you can write the designation as well. Ellen Falbo, chairman, if he is the chairman. दोनों साथ होना चाहिए, नाम के साथ और designation. इसमें सिर्फ name लिखा है, they have not mentioned the designation, but in a business organization it's always mentioned. देखो last वाले में लिखा है 9:15 to 9:30 wrap up. Principal Riddell, the principal यहाँ designation दिया है. So if you know, अगर लेकिन हाँ ये information पक्का होना चाहिए. अगर इमेजिनेटिव बनाना है तो कुछ भी इमेजिन कर दो, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन दिया होगा कि एलन फैल्बो इज द चेयरमैन एंड ही विल बी टेक, देन यू नीड टू राइट दैट. 7:45 to 8:15 ये देखिए सब स्लॉट्स बटे हुए हैं. आप अपना मेकअप करके भी इमेजिनरी भी डाल सकते हैं, एनीथिंग. फिर इसी एजेंडा में इन लोगों ने वो भी लिखा हुआ है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को अगर प्रॉब्लम है दे कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन. जो एजेंडा जा रहा है वो कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले जाता है, शायद और भी ज्यादा पहले, वेल इन एडवांस. आज की डेट में एवरीबॉडी इज सो बिजी, द बिजनेसमैन एंड द शेयर होल्डर्स, तो वेल इन एडवांस दैट दे कैन कम. कौन ऑर्गेनाइज क्या चीज कर रहा है उनसे डायरेक्ट समझने की बात करने की. And then there's additional information on the agenda as well. Additional information, इसमें कुछ भी difficult नहीं है, आप लोग पढ़ के देखिएगा. ठीक है, I'm calling it the day. So we've almost completed, and I have my next class in 10 minutes time. So I'll get myself something to drink. Okay, and sir. something to eat. सर ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन होगा? MCQ. सर वो जैसे समझते हो? ग्रामर पोर्शन होंगे सर, या फिर देखो भाई, सारे क्वेश्चंस तो मिक्स होकर के आएंगे, लेकिन just for your advantage, I am the only one who's setting the paper. So खुदार सर का ऐसे कुछ contribution इसमें नहीं रहेगा. यस सर. सर वाइवा सेम दिन होगा या अलग डे होगा? अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ठीक से पता नहीं है. हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया है, वो क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया गया है, ठीक है. सो आई डोंट नो, बट आई एम श्योर बिफोर द एग्जाम्स तुम लोग को मैसेज मिल जाना चाहिए. या यू कैन कॉल अप सिंटू सर एंड फाइंड आउट आल्सो. दिस इज जनरल क्वेश्चन. सर भाईवा में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो वाइवा में देखो 20 नंबर का है, तो ऐसा ये मत सोचो कि कोई क्वेश्चंस का लिमिटेशन है या इतना पूछा ही जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए. अमूमन अगर होता है कि एक या दो क्वेश्चन, अगर इफ दैट पर्सन आंसर्स वेरी वेल देन ही इज आस्क्ड टू लीव और नेक्स्ट आता है. लेकिन अगर कोई दो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाया तो उसको एज अ बोनस हम लोग 3 क्वेश्चन दे सकते हैं या 4 दे सकते हैं. बट इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर. Otherwise, there is no such rule कि भाई सबसे 4 पूछे जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है. यस सर. और वेटिंग में सब लोग रहेगा, मैं पहले से बता दूं, और ग्रेजुअली उन लोग को अंदर आने दिया. ठीक है. यस Yes. सर. Yes, sir. चलो, ओके, बाय बाय. Thank you, sir. टेक केयर. थैंक यू सर. प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, sir. welcome all of you, welcome. Thank you, sir.